السلام علیکم، صبح بخیر، آداب، استقبال جے اینڈ کے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے یُک بے اکھ نو تازہ شمار ہیتھ اس میزبان تہندس خدمتس اندر حاضر یہ ومیز تھاوان تمام سن دوست آسن بخیر و عافیت بصحت و سلامت خوش تو خوشحال آباد اللہ تعالیٰ بخشن یتھ ماہ مبارک کس پاک تو بابرکت رتس من سن تمام خطا بیمارن بخشن شفا تو رحم کرن خدا آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، ماہ مبارک آز ستم دہ الحمدللہ سہر تکھو مگر پوز ونزو آز تہ سان گرن اندر صبح گوڑن واریاہ سانہ ماج بینے وتھان تہجد پران دسترخوان سجاوان مختلف ضیافت اس رنوت پاکوت تھاوان. بالکل تمہ علاوہ تہ تہ پنہ جائے اوبزرو کورمت کہ یم زن کاربار آسان دفتر آسان یا دکاندار حضرات آسان یمن سارنی عموماً آسان ہفتس مز کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ دۄہ معاف مگر یم زن سانہ گرچہ ماجہ بیٚنہِ آسان یمن چھُنہٕ کانٛہہ تہِ دۄہ معاف آسان. یم وٕچھوُکھ تُہۍ ہر دۄہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ کامہِ سۭتۍ آوُر تہٕ تِمن سارنٕے کامٮ۪ن چھِ تیٚلہِ شوٗب ییٚلہِ تِمن کانٛہہ خاتوٗن اَتھٕ لاگان چھِ تہٕ اَتھ سٲرسٕے آورٲرِس منٛز یہِ خاتوٗن جدیٖد دور کٮ۪ن تقاضن پوٗرٕ کٔرِتھ سماج کے بنٲمٕتۍ اصوٗل لرِ لوٚر پکنٲوِتھ یتھ سٲرسٕے منٛز ونکٮ۪ن کِس یتھ دورس منٛز پنُن ناو نیشناوان نہ صرف پنُن ناو نیشناوان بلکہ پننہِ خاندانُک پننہِ قومُک ناو نیشناوان یتھ مٲدانس منٛز قدم تراوان تتھ شوٗب انان تہٕ یہِ ثٲبت کران کہ بہٕ چھس نہٕ کم پاے کینٛہہ. تہٕ اتھ چھُ شٲعر بڑٕ خوٗبصوٗرت آیہِ فرماوان کہ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی. ازکس یتھ خاص دۄہس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سارنٕے دوستن بالخصوص تمن ماجن بیٚنٮ۪ن تمن خواتیٖنن یم زن یہ پروگرام وٕچھان چھِ گۄڈٕ انوارِ سارے کامہِ مۄکلاوان تمہِ پتہٕ یہ پروگرام وٕچھان تۄہہِ سارنٕے أزیُک یہِ دۄہ مُبارک. کُس دۄہ؟ آز چھُ تُہُنٛد دۄہ، آز چھُ میون دۄہ، آز چھُ اسہِ سارنٕے ہُنٛد دۄہ. آز چھُ عالمی سطحس پٮ۪ٹھ خواتیٖنن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ ہر ؤری أسۍ 8 مارچ مناوان تہٕ ہر ؤری چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ تھیٖم آسان. آز تہِ چھُ تھیٖم، آز چھِ کورِ ٲسِن یا زنان ٲسِن سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ ایمپاورمنٹ رائٹس تہٕ بیٚیہِ اِکوالٹی یعنی برابری. أزکِس پروگرامس منٛز شرفِ میزبٲنی اسہِ حیثیت بہٕ روزٕ تُہٕنٛز میزبان اقرا آخوٗن تہٕ پروگرامس منٛز شریک میزبان کی حیثیت عرفان بشیر. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت دن کی مبارکباد. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور مجھے لگتا ہے یہ دن کی مبارکبادی صرف اس کی حقدار میں ہی نہیں ہوں، بالکل اس کے حقدار مرد حضرات بھی ہیں. بالکل صحیح بات. وہ مرد حضرات جو ان خواتین کی ڈھال بنتے ہیں، سپورٹ بنتے ہیں. اور آج مجھے لگتا ہے اگر ہم کہیں ہیں تو وہ مین سپورٹ کی وجہ سے ہیں. بالکل. ناظرین محترم تہ سان طرف وسوین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا جی یمیک اشارہ کور تو بہ کر یہند تھینک یو تہ کہ ایٹ لیسٹ شی از دی ون ہو ایکنالجز دس تھنگ کہ مرد حضرات یمن ات چیزس میں سپورٹ کران دپان سہ گھر چھن توتان گھر ونان اس جسٹ وی کال اٹ اے ہاؤس اس ونان یہ جسٹ اکھ ہاؤس توتام یوتام نہ مرد حضرات یم خواتین رلت ملت یہ گھر پکنان تیلی یہ گھر بنان. تو یت اقرا جی فرموت یہ گھرس مز شوب آسان سہ گو ماجن ہند ست بیٚنٮ۪ن ہند ست تیلی گھرس مز شوب آسان بچین ہند ست. خاص کر یم سات اقرا جی کت کرو نا ونو کن سات ونان ہے یم تھی ونو تھیم یہند رائٹس اکویلٹی اچیومنٹس یہ ضروری بڑ اخ اہم چیز کہ تیلی یل یمن ایکنالج کرو یہند کنٹریبیوشن ایکنالج کرو تیلی یم رائٹس یم زانن تم مانن یم پن رائٹس تمن تر فکر کہ سن رائٹس کیا یل تمن فکر تر سن رائٹس کیا تیلی ہیک مے باسان سو اکویلٹی تہ گین کرت. تو یل تم اکویلٹی گین کرن تو مے باسان تیل رکائے تمن کانٛہہ تہ چیز ایمپاور گژھنہٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننِس سماجٕچ کتھ چھِ کران ناظریٖن محترم اَسہِ چھِ واریاہ ایگزامپل اِرسپیکٹِو آف ریلیجن اِرسپیکٹِو آف کاسٹ یا اِرسپیکٹِو آف ریس یا ایتھنسٹی یُس سٲنِس سماجس منٛز خواتین ہُنٛد اکھ کنٹربیوٗشن چھُ سُہ چھُ بڑٕ ہاوُن تہٕ باوُن لایق. اگر سانہِ مُلکٕچی کتھ کرو تُہۍ کٔرتو وٕنکیٚس پننہِ مُلکٕچی اگر أسۍ اقرا جی کتھ کرو سُہ گوٚو یہِ زِ أسۍ وٕچھو پریزڈنٹ آف انڈیا وٕنکیٚس سۄ تہِ اکھ خاتوٗن. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تہِ کتھ کرو ریٖسنٹلی أسۍ سٲنِس پروگرامس منٛز أسۍ چھِ بار بار یِمن دعوت کران تہٕ مگر اکھ خاتوٗن ٲس سۄ چھِ اَسہِ چھُ فخر کہِ سۄ چھِ ییٚمہِ سانہِ ایریاہٕچ تہٕ شی از اے پایلٹ. تہٕ یہِ چھِ کہِ تِمو چھُ واریاہ
واریاہ کینٛہہ کنٹربیوٹ کوٚرمُت واریاہ کینٛہہ حٲصِل کوٚرمُت پننہِ زندگی منٛز تیٚلی چھُ مےٚ باسان وٕنکیٚس یہِ سماج ہاوُن تہٕ باوُن بالکل بیٚیہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ زن تۄہہِ پانہٕ تہِ بجا فرمووُ کہِ تُہۍ ٲسِو مےٚ ونان کہِ تۄہہِ کوٚروٕ ایٚکنالیج کہِ یِم زن اتھ منٛز مین سپورٹ آسان چھُ سُہ چھُ بڑٕ ضروٗری یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری وٕچھتو خلیل جبران تُہُنٛد اکھ کوٹ چھُ تِم ونان کہِ اکھ سُہ وُڑوُن کیوٚم یِم تٔمۍ سٕنٛدۍ 2 پار آسان چھِنہ اگر تتھ پارس منٛز أکِس پارس خرٲبی آسہِ یہِ کیوٚم ہیٚکہِ نہٕ وٕڑو کٔرِتھ کینٛہہ تہٕ دۄشوے پار آسٕنۍ وِنگس آسٕنۍ یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری تمہِ علاوٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ مذہبس انٛدر سٲنِس اِسلامس انٛدر آقاے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ تۄہہِ منٛز ہسا چھُ بہتر سُہ بہتریٖن سُہ شخص یُس پننٮ۪ن خواتیٖنن سۭتۍ پننٮ۪ن زنانن سۭتۍ بہتر آسہِ تہٕ یہِ چھِ صاف ایگزامپل کہِ اگر کانٛہہ خاتوٗن کُنہِ فیٖلڈس منٛز چھِ کینٛہہ تہِ اصل کران چھِ اتھ پٔتۍ کِنۍ چھُ أکِس مردٕ سُنٛد سپورٹ آسان تہٕ بوٚڑ رول آسان یوٗتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتھ کرو تِکیازِ ماہِ مُبارک تہِ چھُ چلان ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کتھ کرو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِمن پنٕنۍ بٔچی حضرت فاطمہ زہرا یِوان ٲس گرٕ یہ چھُ لیکھنہٕ آمُت کہِ پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تھوٚد وۄتھان پتہٕ ٲسۍ تِمن نالہٕ مٔتۍ رٹان تہٕ بوسہٕ دِوان تِمن جبیٖنس پٮ۪ٹھ یہِ اوس اکھ عزت یہِ اوس اکھ اِکرام یہِ اوس اکھ احترام تہٕ مگر شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن کہِ سون سماج تہِ چھُنہٕ ناظریٖن محترم اتہِ پتھ کینٛہہ أسۍ تہِ چھِ بالکل لارِ لوٚر کوٗشش کران حالانکہِ واریاہن جاین آسہِ تہِ وٕنہِ کمی مگر سٲنۍ کوٗشش چھِ ہمیشہِ آسان کہِ یِم ریسپیکٹ یِم ڈِزٲرو کران چھِ یُس تہِ ڈِگنِٹی یِم ڈِزٲرو کران چھِ أسۍ کرو تِمن سُہ پرووایڈ تہٕ یہِ چھُ تِمن حق تہِ پنُن. اور مجھے لگتا ہے کہ صرف ایک دن کنفائنڈ نہیں ہونا چاہیے خواتین کا دن ہم منائیں گے اس دن پر ہم رائٹس کی بات کریں گے کوالٹی کی بات کریں گے میرے خیال سے ہر ایک دن اس پر بات ہونی چاہیے ہر ایک دن خاتون کا دن ہے آپ بولیں گے کیسے کیونکہ ہر دن ہم اسے اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں اور اس کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو میرے خیال سے آج کے دن پر اسے ملے گا شاید ہم لوگ آج سوشل میڈیا پر ہم سب ایکٹیو ہیں اس گژھو سیلفی تلو پنن ماجن سے یا پان تہ فوٹوگرافس باقی چیز ہے نا جن کا کنٹریبیوشن رہا ہے ہماری زندگی میں صرف اتنا ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس سے بیانڈ ہمیں دیکھنا ہے. حالانکہ شکر اللہ تعالیٰ کن کہ بہٕ اوسُس صبح سٹیٹکس پران تتھ منٛز چھُ لیکھنہٕ آمُت کہ یم جے اینڈ کے یس منٛز یم ابیوز آسان چھِ اگینسٹ وومین تِم چھِ واریاہ کم گٔمٕتۍ تہٕ 2021 منٛز یِم ٲسۍ پہانہ گٔے تِم کم 2022 منٛز 23 منٛز گٔے تمہِ نِش کم یہ چھِ اکھ خۄشایِن کتھ. اللہ کرے مزید اس میں کمی آئے اور ہم لوگ اس چیز کو پہچانے جو عورتوں کے حقوق ہے وہ پامال نہ ہو اس کی ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہر دن میرے خیال سے جس کی ضرورت ہے آج کل کے اس دور میں بھی کہ ہم اس چیز کو اب ایکنالج کریں اس چیز کو مانیں کہ جو خاتون ہے اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اور اس کو وہ سپورٹ وہ سارے حقوق ملنے چاہیے جس کی وہ حقدار ہے. بالکل ناظرین محترم پروگرام پکناو ہنا برونٛہہ تۄہہِ چھُ آسان انتظار کہ پروگرام کس آغاز منٛز أسۍ کینٛہہ زانکٲری تۄہہِ تامَتھ واتناوو سۄ چھِ آسان ٹریفکٕکۍ حوالہٕ سۄ چھِ آسان موسمٕکۍ حوالہٕ. ناظرین محترم شروعات کرتے ہیں ٹریفک سے. ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر سے ملی اطلاعات کے مطابق سری نگر جموں کو میں شاہراہ پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہی بڑی گاڑیوں کو آج صرف جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. وہی ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ آج گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے. لیکن آپ سے یہی گزارش کہ اگر آپ نے پلان کیا ہوگا ٹریول کرنے کا تو جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پہ نمبرز ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں. رہا موسم کا سوال سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر -1 اور میکسیمم ٹیمپریچر 13. وہی جموں کا منیمم ٹیمپریچر 12 اینڈ میکسیمم ٹیمپریچر 26 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا. جی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے خیال سے اس گۄڈنِچ دِویل پنٛنٮ۪ن ناظریٖنن تام واتناوان چھِ گٮ۪وَن بٲتھ کِس صوٗرتس منٛز آز تہِ چھُ اَسہِ اِنتخاب کوٚرمُت تَمیُک کٲشِر زبٲنۍ ہُنٛد تَتھ زبٲنۍ منٛز اکھ خوٗبصوٗرت کلام واتناوو تۄہہِ تام رحمت اللہ خان صٲبنہِ ہوشلہن آوازِ منٛز. ؤلِو وٕچھو تہٕ بوزو. سند نہیں سندن دار لول نارن ہے سجیاں سند نہیں سندن دار لول نارن ہے سند نہیں سندن دار لول نارن
یم کتھیو عشق تیر بے پرد بے وتیر یم کتھیو عشق تیر بے پرد بے وتیر جگراس ہم پار پار لول نارن ہے سجنا جگراس ہم پار پار لول نارن ہے سجنا سند نہیں سندن دار لول نارن ہے جینا جائی جائی پیوم ہوئی عشق دوت ہوئی جائی جائی پیوم ہوئی قسم گو یمی سمسار لول نارن ہے قسم گو یمی سمسار لول نارن ہے جینا سند نہیں سندن دار لول نارن ہے عشق نفسان چھوئی ونان رحمان عشق نفسان چھوئی ونان رحمان بوزبنی سند نہیں سندن دار لول نارن ہے سجنا لول نارن ہے سجنا لول نارن ہے بیک پھر تہذ خوشاوے تھی وچان پن من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK تو آج عالمی سطح پہ زنانن ہند دہ منانے تو تمام ماجہ بین یم زن ونکس یہ پروگرام وچان بیک پھر گڈ مارننگ JNK پورے ٹیم کی طرف تہ یہ دہ سٹھے مبارک ات کن زن بہ عرض ٲسٕس کران کہ
तमाम यम जन मज़ाहिब अथ मज खवातीनन हिंद हुकूक तिमन हिंद हवाले कथ आमज करन इथे कड़ी मनुस्मृति यो जन अख रिलीजियस किताब अथ मज यह दर्ज जे यथस अकिस खातून हिंद इज्जत करन तथस देवता खुश गछान तो यथस अम सज बेइज्जती गछान समझ दो तुहंद सारी आमाल गई जाय तो यह कथ अथ किताब मज दर्ज नाज़रीन मोहतरम रिलीजन युस जन आसान कुन ते मजहबस सतन अख इंसान तौलुक थावान सो इंस्टीट्यूशन युस जन गोडन वारिया अकिस इंसान सद आइडियोलॉजी शेप करान खैर प्रोग्रामस मज थवो बुथि यह कथ बात हुंद सिलसिल जारी तो आज कम प्रोग्रामस मज मेहमान तिमन सत करनो तुहंज मुलाकात मगर वनकनस रुको अक कमर्शियल वक्फ खातर इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन तुम वुचान पन फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK नाजरीन मोहतरम इत इकराजी प्रोग्राम किस आगाज मज फरमो कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे नाजरीन मोहतरम ये साथ पे हिस्ट्री पे नजर त्रावान पूरे दुनिया की हिस्ट्री पे नजर त्रावान वन गोडनथी प्रोग्राम किस आगाज मज कि इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट और क्रीड ये साथ वो ये दुनिया मज यम ते आबाद गई यम ते घर खुश खुशहाल रोद तथ पत किन जरूर इहुंद अत सुगो इन खवातीन अत न सिर्फ युत अगर वनकस पन्नस मुल्कस पे नजर त्रावो कुन कह फील्ड निमो स्पोर्ट्स फील्ड निमो मिथाली राज तमिस कुस जान तमिस तेंदुलकर खिताब आव दिन तुत योत नी कि वो वनकस अगर हॉस्पिटल सन गा पानी साने माज बिन ततनस वुचान लेडी डॉक्टर अवेलेबल गो इंजीनियरिंग फील्डस मज ततनस अवेलेबल गो स्पेसस मज ततनस अवेलेबल गर्ल्स कि ये फील्डस मज गो ततनस वनकस इकराजी युंद बड़ दुत तो वनकस तथ फील्डस मज बनफस नफीस मौजूद मगर जरूर कुछ जाए खामी तो रोजान नाजरीन मोहतरम मगर यह दह इकराजी वोन कि करो कन्फाइन यह क्या सिर्फ अकिस दोहस तम इकराजी कि नसा ये दोहस पस गसन इज्जत मिलन वकार मिलन बाकी चीज मिलन तो बाकी वरियस गस अल्लाह ताला दिन नजात क्या तुथ क्या हादसे पेश ये वुचान वनकस सैनिस मुल्कस मज वनकस क्राइम अगेंस्ट वुमेन तम ऑन द राइज तो मगर चूंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे इस दिन के मुनासबत से इस पर बात करने के लिए हमने आज स्टूडियो में एक ऐसी खातून को दावत दी है जो है डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और एज वेल एज शी इज द चेयरपर्सन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। जी हाँ, मेरी मुराद है प्रोफेसर सनिया तिवारी जी से। मैम वेलकम टू द शो। बहुत इस्तकबाल आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मेरी तरफ से, इरफान की तरफ से, गुड मॉर्निंग JNK की पूरी टीम की तरफ से आपको भी आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच एंड आई ऑल्सो विश यू, आपको भी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी ओर से हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बहुत शुक्रिया। संध्या जी, स्टूडियोज या टीवी या कैमराज ये आपके लिए नए नहीं हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ स्टेट्स में वहाँ पर जो मुख्तलिफ TV स्टेशंस कायम हैं वहाँ पर आपने कई टॉक शोज़ में पार्टिसिपेट किया है, अलग अलग मसाइल के हवाले से बात की है, कई लेक्चर्स डिलीवर किए हैं, न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। इसके अलावा 23 साल करियर आपका, प्रोफेशनल करियर बतौर एकेडमिशियन, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर हम ज़रूर तफसीलन बात करेंगे। आज के दिन में हम एक खातून को सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि आप कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल साबित हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए, लड़का हो लड़की हो, जिंदगी किसी के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, हर एक को कर्व से गुजरना पड़ता है और उन तमाम ऑड से गुजरने के बाद जब वो कुछ अचीव करता है, पीछे मुड़ के देखता है तो नजर आती है कि मैंने कहाँ कहाँ रुका, मैं कहाँ कहाँ रुका और मैंने क्या क्या देखा। हम पीछे जाते हैं आपके बचपन में। बताइएगा, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कहाँ जन्मे आप, और फिर तालीम का क्या मामला रहा? जैसे हाँ आपने कहा, अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी के लाइफ में होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो अगर मैं मेरे बचपन के बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि बहुत एक कोजी एनवायरनमेंट में बिलोंग करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फैमिली से आती हूँ। मैं 6th हूँ फैमिली में। तो मेरे 3 बड़े भाई है, 2 है अभी, एक का डेथ हो गया, एंड देन 2 सिस्टर्स बड़े हैं मेरे से। सो मुझे लगता है कि बहुत ही एकदम कोजी एनवायरनमेंट था। एंड डेफिनेटली
जैसे जनरली वो टाइम पर हुआ करता था, मुझे लगता है कि डूज एंड डोंट्स, या आप ये बोल सकते हैं कि एक फैमिली में आपको कैसे रहना है, किस चीज़ पे एज अ गर्ल चाइल्ड थोड़ी चीज़ें डेफिनेटली रहती थी जहां हम भाइयों को एंड बहनों को थोड़े डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस पेरेंट्स की ओर से आता था. एंड आई थिंक वो यूज टू हो गए थे कि फाइन, दिस इज द वे अ फ्यू थिंग्स are bound to be there in a family. You know, that's the kind of culture from where I hail. And I think after marriage also यही रहा है, because it was a very big family. So वहाँ पर भी थोड़ा एक तरीके का I think म्यूचुअली अप्रिशिएटिव एम्बियंस में बोल सकती हूँ वैसे रहा है, जहाँ आपको रेस्पेक्ट एज अ वुमेन एंड डेफिनेटली अपना स्पेस रहेगा. उसी के साथ थोड़ी चीज़ों में जहाँ मेन folk को फोर फ्रंट में रहना है, दैट वाज प्रीटी कंफर्टेबली एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड रादर. ओके, ग्रेट. मैम बेसिकली एक चीज़ स्किप होगा, वो ये कि नेटिव रेजिडेंट आप कहाँ के हैं, और अपने बचपन के बारे में थोड़ा बोलिए कि बचपन कैसे गुजरा और तालीम तरबियत का क्या सिलसिला. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यानी मेरी पैदाइश हैदराबाद की है. अच्छा. सो मेरी मदर हैदराबाद की है, फादर यूपी के हैं. सो यूपी के थे. एंड यस, जैसे मैंने बोला है कि हम लोगों का जो एम्बियंस था पहले से ही, आई थिंक गोलकोंडा फोर्ट में जहाँ पर हम लोग पले बड़े थे, सो कम्युनिटी फीलिंग तो मुझे नहीं लगता है कभी था होगा, बिकॉज वहाँ पर ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन, या बोल सकते कि आउटसाइड नहीं, बट जो मतलब दूसरे रिलीजन के थे, एंड हम लोग माइनॉरिटी. बट आई थिंक बहुत ही अच्छे एम्बियंस में मेरा ब्रॉटअप हुआ है, मैं बोल सकती हूँ. दैट इज द रीजन कभी ऐसे फील नहीं हुआ कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जैसे बोलते हैं ना. सो यस, बहुत कंड्यूसिव एंड प्रोटेक्टेड कोजी एम्बियंस आई कम फ्रॉम. बहुत जब हम देखते हैं कल्चरली, हिस्टोरिकली काफ़ी रिच जगह है जहाँ से आप आई हैं. अच्छा, वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर एजुकेशन. कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँची? देखिए, जैसे मैंने बोला है कि आई कम फ्रॉम आई थिंक डिसेंट इनफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली. बट हमारे पेरेंट्स का यही था एक इंटेंशन कि रिस्पेक्टिव ऑफ लड़का या लड़की सभी को अच्छा एजुकेशन देंगे. सो उस तरीके से हम चारों बहनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है. आई थिंक 2 of my sisters are settled abroad. एंड जो वहाँ पर एक पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर आई थिंक अलॉन्ग विथ माई ब्रदर मैं भी वहीं पर जो दूसरे थे पढ़ती थी. सो हाँ, ग्रेजुएशन मैंने किया है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से. सो वहाँ पर मैंने अपना BA इन इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट किया है, एंड ग्रेजुएशन में आई गॉट मैरिड इन माई फाइनल ईयर. ओके. सो बट यस, फॉर्चुनेटली जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि इफ women are able to achieve something in society, definitely men play a very great role. So whatever I am today, I think it definitely is attributed. मैं इसका क्रेडिट डेफिनेटली मेरी माँ को तो डेफिनेटली जाएगा, पेरेंट्स को जाएगा, बट मेरी मदर इन लॉ, जैसे मैंने बोला मैंने डिग्री में मेरी शादी हुई थी. सो मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज को जाएगा, बिकॉज उन्होंने मुझे एट पार उनके घर की लड़कियों के जैसे मुझे पढ़ाया है. सो दिस इज द काइंड ऑफ आई थिंक एजुकेशनल, या छोटा अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊं, सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन एक्सपोज टू. हाँ, पहले से ही ऐसे थोड़ी चीज़ें रहती थी कि हमको जैसे समर वेकेशन रहता था, तो बचपन में मुझे लगता है कि वी यूज्ड टू हैव एक टाइम पर मनोरमा गाइड होती थी, करंट अफेयर्स एंड ऑल. सो सभी भाई बहनों को एल्डेस्ट सिस्टर यूज्ड टू टेक केयर, एंड समर वेकेशन का एकेडमिक प्लानिंग सिस्टर ही देखती थी मोस्टली, बिकॉज फादर वाज into a kind of setup where he couldn't afford much time. So मेरी माँ भी I think basic education like literacy where she could write her name. So still I think उनका जो सीख था ओवरऑल में हमको डेफिनेटली बहुत ही रेलिवेंट रहा है कि कैसे मार्गदर्शन जो हम बोल सकते हैं. So this is something about me. Ma'am, we spoke about this thing कि आपने BA ऑनर्स इंग्लिश में किया. ये पहले से एक इंट्यूशन था या फिर किसी ने आपको इंस्पायर किया इस चीज़ को लेने के लिए कि यू शुड एक्सेप्ट इंग्लिश एंड इसी में फिर आप प्रॉस्पर करें आगे एक्सेल पे? नहीं, जैसे थोड़े अप्स एंड डाउन्स हम बोलते हैं. दो मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो बिलोंगिंग था हैदराबाद में, जो ब्रॉटअप वहाँ पर, बट बिकॉज ऑफ आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1988 के जो कम्युनल वायलेंस थे,
तब मुझे थोड़ा मेरा स्टडीज़ में डिस्टर्बेंस हुआ था. दो आई डिड माई इंटरमीडिएट इन MPC, आई कुड नॉट कंप्लीट इंजीनियरिंग. एट द सेम टाइम मैंने UPSC के एग्जाम्स लिखे थे, तो बोथ UPSC मेंस, आई थिंक UPSC प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था. लाइकवाइज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी क्लियर किया था. बट बिकॉज आई गॉट मैरिड, सो मुझे एक तरीके से ऑप्शन इसी को कंटिन्यू करना पड़ा. जी. अच्छा मैम, यहाँ प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ में एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा. इनफैक्ट प्रोमो दिखाना पड़ेगा नाजरीन को. तो नाजरीन मोहतरम, आप देखिए ये प्रोमो सिंगिंग स्टार का प्रोमो है. वापस लौट के आएंगे तो प्रोफेसर संध्या जी से और भी बात करेंगे. देख रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैट. वेलकम बैक. प्रोफेसर संध्या साहिबा से हम लोग बातचीत कर ही रहे हैं, तो इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे. ये एक सवाल रहेगा आपसे मैम. आपने कहा कि शादी के बाद आपने अपनी स्टडीज़ मुकम्मल की. ऐसे में एक खातून पर, एक लेडी पर फिर कई सारी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि घर में ही आपके जहन में ये बात कही जाती है, ये डाली जाती है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको घर देखना है, फिर उसके बाद बच्चे देखने हैं, हस्बैंड के जो हुकूक है वो पूरे करने हैं. ऐसे में आपने स्टडीज़ भी कंप्लीट की, तो कैसे हुआ ये सब? लाइक हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस? मे बी आई थिंक मेरा डिटर्मिनेशन पहले से थोड़ा स्ट्रांग था. बचपन से मैं जो सोचती थी. एंड तब व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरा एक डेफिनेटली कंडीशन था कि आप जो भी मेरे को मतलब सेटल करेंगे, वॉट एवर यू लाइक आई एग्री, बट एक कंडीशन रहेगा कि मुझे आगे पढ़ना है. अच्छा, मतलब ये आपकी कंडीशन थी? कंडीशन था कि मुझे आगे पढ़ना है. सो दैट डेफिनेटली आई थिंक वाज रेस्पेक्टेड. एंड जैसे मैंने कहा कि मेरे मदर इन लॉ का बहुत सपोर्ट था. एंड अनफॉर्चुनेटली शी वॉज अ सिंगल पेरेंट. उन्होंने अपने बच्चों को अकेले, सो मेरे हस्बैंड पूरा कंप्लीट नहीं एजुकेशन कर पाए, बिकॉज माई इन लॉज वर सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स क्लास 1. तो डेफिनेटली आई थिंक फैमिली का बिलोंगिंग, एक तरीके का फिनेंशियल सिचुएशन एंड ऑल वाज डेफिनेटली देयर. तो मुझे काम वगैरह का उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता था. अच्छा. एट द सेम टाइम आई थिंक somewhere in the back of the mind I had that self motivation, मैं कह सकती हूँ, because जैसे आपने बोला है तब तक ठीक था, but when I became a mother, when I delivered my first baby, so that was slightly challenging. But I feel as you said, looking back, amazed कि मेरा टाइमिंग रहता था तब पढ़ाई करने का नाइट में 2 o'clock to 4 to 5 o'clock. Okay. बिकॉज बेबी को डेफिनेटली देखना है. बट जैसे मैंने कहा कि एज ए मदर मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इसीलिए मेरे को वो टाइम सेटल हुआ. बट आफ्टरवर्ड्स 5 o'clock तो स्लाइटली मैं अगर थोड़ा लेट भी मतलब वेकअप होगा, तो मेरे को ऐसे था कि मदर इन लॉ का कोऑपरेशन, शी यूज्ड टू टेक केयर. एंड सच में बोलूँ तो मुझे फर्स्ट 4-5 years ऐसे फील नहीं हुआ कि मुझे कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आया है. बस अपना पढ़ाई देखना है. जस्ट यू नो बोलती थी कि आप मेरे बेटे को यू नो जस्ट टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स, दैट्स इट. मतलब ठीक है, आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिला सबसे, लेकिन ये आपकी डेडिकेशन थी, आपकी मोटिवेशन थी कि आप इस वक्त इस ओहदे पर फाइज हैं. हम मजीद इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे हम एक कमर्शियल ब्रेक के लिए. नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं एक कमर्शियल वक्फे के लिए और इसके बाद जल्द लौटेंगे. अखबार की सुर्खियां आप तक पहुंचाने और अपने मेहमान से इस तरह की दिलचस्प गुफ्तगू जारी रहेगी. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है.
ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेक लट खुश नजरीन मोहतरम तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK तो गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस मज आज यम हवाले कत कर इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो अत पे कत कर खतर आज अस प्रोफेसर संध्या तिवारी जी यमो सत करो बे कत मगर वनकस वक्त वातो तुम अखबारात की सुर्खियाँ। शुरुआत करते हैं उर्दू रोज़नामे से। ये रकम तराज है। रूस में मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान कामयाब मुलाकात के बाद हिंद चीन ताल्लुकात ने गुज़श्ता साल में मस्बत पेशरफ्त की है। चीनी वज़ीर खारिज। जी नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है और बजट के ताल्लुक से इसमें ये खबर शाया हुई है। जम्मू व कश्मीर में 7 साल बाद मुंतखब हुकूमत ने किया सालाना बजट पेश। वज़ीर आला बतौर वज़ीर ख़जाना कानून साज असम्बली में बने पेशकार। AAY ज़ुमरे में आने वाले कुंभू के लिए 200 यूनिट बिजली और 10 किलो फी नफर मुफ्त राशन का ऐलान। 1 अप्रैल से गरीब लड़कियों के लिए शादी की इमदाद में 50% इजाफा। अब मिलेगी 75,000 रुपए की माली मावनत। खवातीन के लिए तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट बशमूल इलेक्ट्रॉनिक बसों में मुफ्त सफर। जी असल आज के इस खास दिन पर ये सुनने को मिल रहा है। गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट सो गो ये बसन मज हकन यमन फ्री सफर कर न सिर्फ तुत बल्कि आज बजटस मज आई वारिया बेती चीज क्या करना जो इतनी सारी चेंज आई ना, बिल्कुल मेरी नजर सिर्फ इसी बात पे गई। बिल्कुल बसेस में ई बसेस में बिल्खुसूस अब हम फ्रीली ये कर सकते हैं, ट्रैवल हमें किराया नहीं देना। खास कर आत मज यम AAYS अंडर यम रोजान तिमन यन 100 यूनिट्स को ज्यादा बिजली फ्री देनी या 10 किलो राशन वगैरह तिम चीज नजर मोहतरम। एक और उर्दू रोजा में मेरे हाथ में है। बटमालों में मिनी सेक्रेटरीट की तामीर पर 9.82 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके नयतु प्रोजेक्ट के पायल फाउंडेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। मकामी उर्दू रोजनामे में बजट के ताल्लुक से ही खबर शाया हुई है। बजट अवाम दोस्त और गरीब परवर, हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अवामी राहत पर मरकूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस। जी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से ये खबर, हिंदुस्तान को फाइनल में तारीख रकम करने का सुनहरी मौका। इसी अखबार से इसी खेल के हवाले से ये खबर, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से कबल न्यूजीलैंड को बढ़ा दचका, अहम फास्ट बॉलर इंजर्ड। अंग्रेजी रोजनामे से ये एक खबर सुनिएगा। HC बैन्स ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज एंड प्लास्टिक्स इन एंड अराउंड 0 पॉइंट ऑफ जोजिला पास। मेरे हाथ में एक आखिरी रोजनामा ये वी द पीपल उन्वान के तहत लिखते हैं, विद अनरिजॉल्व्ड ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफ स्कूल बसेस बाउंड टू एग्रीवेट द प्रॉब्लम, सो गवर्नमेंट मस्ट रीअसेस ट्रैफिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज टू प्रोवाइड रिलीफ टू कम्यूटर्स इन कश्मीर। आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, इसमें ये शह सुर्खी, उमर नोमिक्स माई बजट लव लेटर टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, CM UT विद असेंबली वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे अपनी मेहमान से। प्रोफेसर संध्या तिवारी जी हैं जो डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स भी, इसके साथ साथ चेयरपर्सन है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। 23 इयर्स का जो प्रोफेशनल करियर है इसका आगाज कहीं से हुआ। हम जानना चाहेंगे कि कहां से हुआ और यहां तक, इस सफर तक आप कैसे पहुंची, ये कैसे मुकम्मल हुआ? आई थिंक फर्स्ट मेरा बिगेस्ट अचीवमेंट रहा है व्हेन आई टॉप द MPhil एंट्रेंस इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जिसके लिए मुझे प्रोफेसर शाह ने मेमोरियल अवार्ड मिला था। देन मुझे लगता है कि वहाँ से जो मैंने स्पेशली इंटरेस्ट में और मोटिवेशन में थोड़ा और बढ़ावा मिला है मुझे। एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक देयर आर मेनी ओकेशंस जहाँ पर मुझे स्पेशली, जैसे आपने बोला है टॉक शोज या तब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन था फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की जो कमी हो रही थी। आई थिंक इट वाज वेरी मच प्रोमिनेंट फीचर इन एकेडमिया। मुझे लगता है वो टाइम पर आई वाज वर्किंग इन एन ऑटोनोमस इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो तब मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस मिला है। एंड मैं इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर के हैसियत से बहुत सारा काम किया है मैंने। उसी के साथ जैसे हम UGC HRDCs की बात करें तो मुझे लगता है अक्रॉस द कंट्री I have delivered in more than 20 UGC HRDCs around 350 lectures for the faculty of government degree and PG colleges and universities from 2012 onwards. So उस तरीके से मुझे लगता है कि by the grace of God मेरी मेहनत थी, बट उसी के साथ डेफिनेटली मुझे
सक्सेस भी मिला है एंड मेरा नेचर पहले से यही रहा है कि मैं ऑब्स्टैकल्स को या जो भी हमारे चैलेंजेस रहते हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ बिकॉज पहले से बताया गया था कि आपको अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो फोकस आपके टारगेट पे रखें. प्रॉब्लम्स तो हर किसी को रहेंगी. सो मुझे लगता है इस वे ऑफ फंक्शनिंग से मुझे डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिला है. जैसे मैंने बोला है दैट वाज एकेडमिक अवार्ड, उसी के साथ मुझे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी मिला था 2016 में इन न्यू दिल्ली. देन आई रिसीव्ड एक्सीलेंस इन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस अवार्ड. सो इस तरीके से 2-3 अवार्ड्स आई कुड गेट. ओके मैम, ये पब्लिकेशंस की जब आपने बात की तो जो भी आपकी पब्लिकेशंस आए होंगे जो अगर नाज़रीन पढ़ना चाहें, एक तो वो क्वेश्चन अलॉन्ग विद दैट, जब तक आप कंफर्टेबल थोड़ा फील करेंगे, अलॉन्ग विद दैट जो आपने ये कोट कहा कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लाइफ में, जैसे इकरा जी ने भी कहा कि हर किसी की लाइफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व्स हर किसी की लाइफ में है, तो डेफिनेटली इंसान को मेहनत करनी चाहिए आगे जाने के लिए. जैसे इकरा जी आपने भी कहा था कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, और मेहनत जब इंसान करता है तो यकीनन कहते हैं ना कि वो कौन सा पौधा जो उग नहीं सकता, अगर मेहनत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता. बिल्कुल सेम इन्होंने भी किया. हालांकि जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में जब बात करते हैं तो आई हैव टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद मी, एक तो इकरा जी है ही, उनके साथ साथ प्रोफेसर संध्या जी भी, संध्या कुमार तिवारी जी भी, लेकिन उसके साथ साथ एक औरत के लिए बैलेंस करना, मैम उसका घर बैलेंस करना, उसकी स्टडीज बैलेंस करना, उसका एकेडमिक करियर बैलेंस करना, और फिर बाहिर प्रोफेसर यहाँ पे इस डिपार्टमेंट तक पहुंचना, इट मस्ट बी हरक्यूलस टास्क आपके लिए. तो इस पे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन जब तक आप कंफर्टेबल फील करेंगे, अगर आप बात कर सकते हैं इस पे तो आप करें मैम, इफ यू आर कंफर्टेबल. या बैलेंसिंग इज डेफिनेटली अ वेरी बिग थिंग, बट मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह. बिल्कुल. सो डिटर्मिनेशन काउंट्स अ लॉट, वेदर फॉर अ वुमन और अ मैन. चैलेंजेस डेफिनेटली बहुत रही हैं. अगर मैं उसके और देखूंगी तो मुझे लगता है दिन भी कम पड़ेगा. बट जैसे मैंने बोला है, मैंने डिस्कस उतना उसके ऊपर नहीं दिया है, बट एक बात बोलूंगी आपको, स्पेशली जब मेरे बच्चे फॉर्मेटिव स्टेज में थे, दोनों भी, आई हैव गॉट अ डॉटर एंड अ सन. सो व्हेन दे वर इन स्कूल गोइंग एज, तब मुझे लगता है कि थोड़ा मैंने प्रेफरेंस बच्चों को दिया था. और एक माँ के लिए ये सबसे करते हैं कि चूंकि रोजेदारी का वक्त है, रमजान मुबारक है, तो यहाँ पर हम लोग चाय तो नहीं पिएंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम हम दरख्वास्त करते हैं कि इनके लिए वाटर ज़रूर लाएं. हमारे कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं. जब तक वो पानी लेकर आते हैं हम मुख्तसर वक्फा ले लेते हैं और जल्द हाजिर होंगे. क्या आपको पता है आप अपनी सालाना बिजली बिल को 0 बना सकते हैं? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम जेएनके के अवाम को अब सोलर रूफटॉप्स मुहैया करवा रही है 65% तक की सब्सिडी के साथ. आप हमारे रजिस्टर्ड वेंडर्स के जरिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने बिजली बिल को काफी हद तक घटा सकते हैं. मेरा नाम मोहम्मद सैफी कंठ है. मैंने 6 किलोवाट का ये सोलर ऑन ग्रिड लगवाया. मुझे काफी सहूलियत हो गई, बिल भी कम आने लगी. इसका जो कॉस्ट है 3,08,000, उसमें सेंटर की तरफ से आती है 80,500 रुपीज़ की सब्सिडी, वो मुझे मिल गई है. ऑन ग्रिड में क्या फायदा है, उसमें अगर आप जो भी जनरेट करेंगे, अगर आप वो यूज नहीं कर रहे हैं, वो ग्रिड को जाएगा, आपको वो काउंट होगा एज एक्सपोर्ट एनर्जी और आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. मतलब आप समर्स में जो यूनिट्स ग्रिड को दे रहे हैं वो आपके क्रेडिट्स में स्टोर होंगे और विंटर्स में आपकी यूजेज को यही क्रेडिट यूनिट्स कॉम्पनसेट करेंगे, जिससे आपका बिल बहुत ही कम हो जाएगा. अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर लेंगे, ठीक है ना, जिसकी बिल तकरीबन 3,000 रुपए आती है महीने की, अगर वो 5 किलोवाट सोलर जो रूफटॉप लगाएगा, उसकी बिल ज्यादा से ज्यादा 15, 20, 25 या 30 रुपए आएगी. आप इस फैसिलिटी को आसानी से फाइनेंस करवा सकते हैं. सरकार ने तो ऑलरेडी 2,84,00,000 रुपए की सब्सिडी कस्टमर्स को रिलीज कर दी है. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए www.pmsuryagar.gov.in पे रजिस्टर करें और KPDCL के चुने हुए वेंडर्स से ही सोलर रूफटॉप्स लगवाएं. जल्दी कीजिए, ये स्कीम कुछ ही वक्त के लिए दस्तयाब है. ब्रॉट टू यू बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड.
वेलकम बैक। आज हम आलमी सतह पर ख़वातीन का दिन मना रहे हैं और आज का दिन एक मरतबा फिर से आप तमाम ख़वातीन को बहुत बहुत मुबारक। हमारे साथ प्रोग्राम में एक ऐसी ख़ातून तशरीफ़ फरमा है जिनकी लाइफ अगर प्रोफेशनल करियर के ताल्लुक से बात करें, प्रोफेशनल लाइफ के ताल्लुक से भी बात करें तो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। मेरी मुराद है प्रोफेसर संध्या तिवारी साहिबा से, जो इस वक्त बतौर डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड इंटरनेशनल अफेयर्स CUK में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी चूँकि इस वक्त रमज़ान मुबारक है, अदरवाइज़ हमारे यहाँ प्रोग्राम में चाय का भी एहतमाम होता है, पानी भी यहाँ पर मैसर होता है, लेकिन वी आर एक्सट्रीमली सॉरी कि पानी आप आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि बिकॉज मुझे भी लगा कि एक्चुअली 1 आवर का प्रोग्राम है, सभी फास्टिंग में होंगे, तो मैं मेरा बॉटल क्यों ले जाऊं। ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड आई होप यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। या यस ओके, सो हम लोग क्वेश्चन इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए मेरे जहन में ये सवाल है, चूँकि आपने जिक्र किया कि जगह जगह आपने कामयाबी के झंडे गाड़े और आपको अवार्ड से नवाजा गया, इसके अलावा आपने कई सारी किताबें भी लिखी हैं, कई सारी किताबें भी एडिट की हैं, इस ताल्लुक से बताएं। 2009 में मेरा फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ है, Wow. जिसका नाम है द साइलेंट स्टॉर्म। ओके, सो because of some I think unfortunate event in my life, मुझे लगा कि I need to pen down some of my experiences जी. and emotions। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने डायस्पोरा women writers, जी. जो Indian women and then generally women from different parts, how they are settled abroad, किस तरीके से वहाँ पर अपना वो लोग राइटिंग करियर एंड जी. एकेडमिक करियर प्रमोट कर रहे हैं, उस पर मैंने एक किताब लिखी। उसी के साथ मैंने इंस्पिरेशनल इंडियन वुमेन अचीवर्स, बिकॉज सक्सेस ऑफ वुमेन मुझे कभी भी लगता था कि मुझे सेलिब्रेट करना जी. है, बिकॉज एज अ टीचर हर साल एटलीस्ट हम लोग 500 to 700 मिनिमम बच्चों को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, जी. उसमें से डेफिनेटली 60% लड़कियां होती हैं। एंड मुझे यही कंसंट्रेशन था कि फाइन, अगर हम लोग ऐसे सेलिब्रेटेड वुमेन का प्रोफाइल अगर हम बच्चों से डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे, उस पर बात करेंगे, दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प। एट द सेम टाइम मैंने मैकमिलन जो बहुत ही आई थिंक इंटरनेशनली रेप्यूटेड पब्लिशर्स है विथ रिगार्ड टू टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल, उनके साथ मैंने आई थिंक 3-4 किताबें मैंने डिग्री स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंग्लिश की पब्लिश की है। आई थिंक दैट वाज द टेक्स्ट बुक फॉर ऑलमोस्ट 100 कॉलेजेस विच वर देयर अंडर माय प्रीवियस स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। सो राइटिंग आर्टिकल्स, delivering talks and academic activities have always kept me busy। इसीलिए मुझे लगता है कि जो मेरा मोस्टली मतलब कॉन्शियसली मैंने नहीं किया है, बट व्हेन आई लुक बैक आई थिंक द एंटायर कॉर्पस जिस पे मैंने काम किया है दैट रिवॉल्व्स अराउंड women issues and women's concerns and societal treatment also। हम आपसे मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से, आपके प्रोफेशनल करियर के हवाले से अभी और भी बात बहुत करनी है, लेकिन नाज़रीन मतलब यहाँ रुकते हैं वक्फे के लिए। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो प्रोफेसर संध्या जी से इनके प्रोफेशनल करियर के बारे में और भी सवालात करेंगे। अब देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शोशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के प्रोग्राम में आज हम जिन शख्सियत से बात कर रहे हैं ये है प्रोफेसर संध्या तिवारी जी, जो है डीन स्कूल ऑफ लैंग्वेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। मैम, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल करियर एज अ टीचर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया होगा और स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स सेम तो नहीं होते हैं सभी की कैपेसिटीज़ के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन व्हाट डू यू थिंक एज अ टीचर कि व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए गुड टीचर, कि एक अच्छा टीचर कैसे बने? एंड व्हेन इट कम्स टू आवर दिस यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर या पर्टिकुलरली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो डू यू फाइंड कि कहीं पे लैक्यूनीज है? आई थिंक रिगार्डिंग अ टीचर मुझे लगता है मैं एक सिंपल सा कोटेशन बोलूंगी, उससे आपको समझ में आएगा कि मेरा फिलॉसफी क्या रहा है फॉर अ टीचर। अ रियल टीचर इज द वन
who becomes progressively unnecessary. ओके अब जब एक बच्चे के लाइफ में आप टीच करते हो, जी उनको इतना केपेबल बनाए कि एक टाइम पे आपको उनकी नीड ही नहीं होनी चाहिए. जी सो मुझे लगता है कि हम ये कैसे फुलफिल करें, मेरा आउटलुक है. जैसे आपने बोला है कि बच्चों का लेवल ऑफ रिसेप्शन जी सेम नहीं होता है. यस, आई डू एग्री. एट द सेम टाइम आई फील एवरी चाइल्ड, चाहे कोई भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स में एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, जी एंड मोर देन पेरेंट्स, टीचर्स कैन रियलाइज दैट. सो आई थिंक इट इज अ टास्क फॉर अ टीचर कि आप किताबों से नहीं, बट आप उनको समझ के पढ़ाएं एंड उनको आप मोटिवेशन, इंस्पिरेशन दें. बिकॉज एक जो इंडिविजुअल को मोटिवेशन जितना इम्पॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता है कि ओनली आपका जो 1 आवर का लेक्चर होगा वो सफिशिएंट रहेगा. नो डाउट उनको सजेशंस, टिप्स देना है, उनको गाइड करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट द सेम टाइम उनको एनालाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि उनका स्ट्रेंथ कहाँ लाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको आप काम इंडिविजुअली दोगे, अपने फ्रीडम से वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे. तो डेफिनेटली मुझे लगता है उनके पर्सनालिटी को रीड करके आप उनको पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. एंड डिसिप्लिन वाइज मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रहा है. In, I think throughout my career of 2 decades plus, I never had any problem from any student. Rather, I think I got so much love and affection कि I think यही रीजन है कि इतना मैं काम भी कर पाई हूँ. एंड कमिंग बैक टू JNK, मुझे लगता है बिकॉज माई नॉट जस्ट हियर बट लास्ट 4 years से मैंने नोटिस किया है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब टीचिंग से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा था. बिकॉज व्हेन आई थिंक माय अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन रियलाइज्ड कि अंडरस्टैंडिंग पीपल मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कमिटमेंट, सिंसियरिटी जो मैं काम करती हूँ उससे रिजल्ट अच्छा आता है. तो मैंने देखा है कि पुराने यूनिवर्सिटी में आई वाज देयर एज द डायरेक्टर IQAC, आई वाज द डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग. तब से मेरा थोड़ा टीचिंग का कंपोनेंट कम हुआ है, बट डेफिनेटली इट वाज देयर. यहाँ पर भी मैं आई थिंक बोल सकती हूँ कि बिकॉज राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर एज द डीन, बट आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट whenever it is possible, स्पेशली जैसे डेजर्टेशन हम गाइड करते हैं, प्रोजेक्ट गाइड करते हैं, तो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करती हूँ. एंड वंस इन अ व्हाइल एटलीस्ट आई मेक इट अ पॉइंट टू गो एंड टॉक टू देम आल्सो इनफॉर्मली. सो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ के बच्चों से भी बहुत पॉजिटिव रहा है. जैसे मैंने बोला है कि मेरा मदर टंग हिंदी है एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद. सो मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों से मेरा कनेक्ट बहुत जल्दी से आई थिंक ईजिली हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज विच वॉज डेफिनेटली the bridging factor. And I think I really appreciate the grace among the girl students here. Definitely in a way I celebrate the attire because that's very important. Because अगर मैं यहाँ पर एक digression लेके आपके आंसर के साथ एक बात बोलूं कि जो आजकल I think in the name of modernity perhaps the few things टेक्नोलॉजी को मिसयूज करके जो स्पेशली दी आई थिंक अदर जेंडर, नो डाउट दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट, बट मुझे लगता है एज अ टीचर आई ऑल्सो हैव द राइट टू कॉशन माई गर्ल स्टूडेंट्स. लड़कियों को मुझे कॉशन भी करना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट एंड एज देयर वेल विशर कि हमको टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या अच्छा कर सकते हैं उसको सीखना है, नॉट एग्जैक्टली मेकिंग इट समथिंग वेयर वी ट्राई टू डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए. ये तो हम इस प्रोग्राम के वसादत से भी लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं. स्पेशली पेरेंट्स का एक रोल बनता है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें. यहाँ पे नाज़रीन मुहतरम रुकते हैं एक प्रोमो के लिए. सिंगिंग स्टार का प्रोमो देख के आएंगे, वापस लौटेंगे तो मैम से और भी इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करेंगे. देख रही है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग. दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते. अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं आप और प्रोफेसर संध्या तिवारी साहिबा से हमारी बातचीत जारी है. संध्या जी, आपने कहा कि कश्मीर में आपने कई सारे स्टूडेंट्स से इंटरैक्ट किया और आपको बहुत अच्छा लगा, उनके ख्यालात जाने का मौका मिला.
कश्मीर में कब से हैं आप, कितना वक्त हुआ यहाँ? I think it's almost 1.5 years. ओके ओके। So बतौर यहाँ डीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर आपने ज्वाइन किया था? yes, as a professor. ओके बिकॉज हमारे स्कूल का डीन इंचार्जशिप किसी और डिपार्टमेंट को मिला था. देन आई थिंक आफ्टर आई ज्वाइन मुझे टेक ओवर करने के लिए पहले ही बोला था, बिकॉज आई वॉज हैविंग माई ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एक्सपोजर. तो इमीडिएटली बट मैंने 2-3 मंथ्स का टाइम रिक्वेस्ट किया था, बिकॉज आई मीन वेदर इतना मुझे उतना कंड्यूसिव नहीं लगा था. दैट इज द रीजन आई थिंक आफ्टर 3 months I took charge as the dean. ओके So ग्रेट। तो मैम ये वेदर कंडीशन नहीं लगा था. एक क्वेश्चन ये कि जो थोड़ा हटके हैं आपके इस केस, वो ये कि स्टूडेंट से तो आप मिले हैं, आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं डिसर्टेशन में, बाकी चीज़ों में, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? I think it's a wonderful experience. पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि sometimes देखने वालों की आंखों पे भी निर्भर करता है ना. तो मैं कभी भी देखना चाहती हूँ कि पॉजिटिव क्या है. देखिए, एक फैमिली में जब मैं एक इतनी बड़ी फैमिली से मैं आती हूँ, इवन इन लॉज में भी, तो आपको डिफरेंसेस हर जगह दिखेंगे. दे आर बाउंड टू बी देयर. सिस्टर्स में रहते हैं, ब्रदर सिस्टर्स में रहते हैं, तो मिनिमम डिफरेंसेस मुझे लगता है आर नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. एट द सेम टाइम यहाँ पर स्पेशली आई थिंक द ग्रेस, द व्हाट यू कॉल रिफाइंड हॉस्पिटैलिटी इज समथिंग विच आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड. एंड कनेक्ट तो बहुत अच्छा रहा है. मैं काम में बिजी रहती हूँ. हाँ, आप ये बात बोल सकते हैं कि मैंने पूरे डिपार्टमेंट्स को शायद अभी तक पर्सनली उनके कैबिन्स को विजिट नहीं किया है, बिकॉज मेरा एक ये मानना रहा है कि जितना आप काम ज़्यादा कर सकते हो, डू दैट, बिकॉज यू नेवर नो कि यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अच्छा प्रोफेसर साहिबा, क्या आप सिर्फ काम के सिलसिले में कश्मीर आई या उससे पहले भी कभी मौका मिला था कश्मीर आने का, घूमने? I came once. Okay, when I got married, I think it was मेरे mother-in-law, father-in-law, उन्होंने भी I think they were here, and I get to see their photographs in all the Kashmiri attire at Dal Lake. तो मैं भी आई थी. अच्छा. But it was a very short stint because of my advanced I think stage of pregnancy also. अच्छा मैम, एक आपका जो इस पे हमने बार बार जिक्र किया है वो ये है कि आप चेयरपर्सन भी है, या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स का, या फिर उसके साथ साथ जो कंप्लेंट्स कमेटी है वो भी आप देख रही है. वो कमेटी के बारे में बताइए कि वो किसके बारे में है, एंड वहाँ पे कंप्लेंट्स आती भी है कि नहीं? देखिए, एक्चुअली इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक यूजीसी के मैंडेट से भी हम रखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली अभी शी बॉक्स वगैरह. बट जो आपने स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर हमको ज़्यादा उतना ज़रूरत कभी नहीं पड़ा है, एंड मैं बोलती हूँ कि मुझे ये कमेटी का काम नहीं आए तो आई विल बी हैप्पी, बिकॉज ये एक्चुअली सेक्सुअल ग्रीवेंसेस फ्रॉम द अदर जेंडर, वेदर इट इज़ विथ रिगार्ड टू हैरासमेंट और दीज थिंग्स. बट मुझे लगता है कि ये बहुत कम है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मे बी द रीज़न इज़ अपने आप से बहुत ही डिसिप्लिन, या आप अगर उर्दू का वर्ड इफ आई एम यूजिंग इट राइटली, सलीका बोलिए, जैसे लड़कियां वैसे रहती है, एंड हम भी उनको जहां पर जैसे गाइड करना है पड़ता है. आई थिंक ऑल द टीचिंग फ्रेटर्निटी एडमिनिस्ट्रेशन राइट नाउ इज वेरी वेरी केपेबल एंड कॉम्पिटेंट कि हमको इसका हार्डली कभी जरूरत पड़ता है. हम लोग ओनली एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं विथ रिगार्ड टू जेंडर इक्विटी. मैं बोलूंगी लाइक हमने रिसेंटली डिबेट कंपटीशन किया, कल हमने किया था एक वॉक रिगार्डिंग अवेयरनेस. तो हमारा एजेंडा ये रहता है कि आप इक्वालिटी करके ही ना ही फाइट करें, बट इक्विटी के लिए फाइट करें एंड म्यूचुअल सेलिब्रेशन के लिए फाइट करें. जैसे हम बोलते हैं कि टू मेक अ फुल डे यू नीड टू हैव अ डे एंड अ नाइट. सो इन अ सोसाइटी men and women are like that. You cannot say कि दिन को भी आप रात बना दो. मैंने यही बच्चों को भी एक्चुअली आई थिंक रिसेंटली बोला था कि आपको ये देखना है कि आपका एबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स जो गॉड एंडोर्ड है, आप उसको कैसे बेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. फील्ड उसके साथ में देखिए, आपको जनरली माना जाता है कि women have more patience, women are more understanding, they are empathetic. तो मुझे लगता है कि आप ये क्वालिटी को सेलिब्रेट करें, उसको यूज करें. एट द सेम टाइम आई बिलीव
boys are also required to be little, I think, More open patient. to for these things कि आप जहाँ पर आपको पता है कि ये qualities में आपके मदर को आपने देखा होगा, they manage better. जी. So आप कोई भी रोल कर रहे हो, आप उनको ये है ना कि आपको naturally accept करना है rather than I think taking life in a competitive spirit. So मुझे नहीं लगता है कि to bring about a decent balance in the society, competition is needed. It is only understanding, appreciation, celebration जी. of the mutual respect बिल्कुल. and space. बिल्कुल. बेसिकली मुझे मैम लगता है। वुमेन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ फंडामेंटल राइट्स पे 14 है, 16 है, 50 है, बाकी सारी चीज़ें, बट स्टिल वो हैव अ सॉरी अफेयर. वो ये कि नेशनल एक सर्वे हुई है नेशनल लेवल पे, उसके मुताबिक देखा गया है कि 30%, मोर देन 30% जो वुमेन है, दे फेस स्पाउसल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का है, स्पाउसल वायलेंस का है, इन लॉज का वायलेंस का है. एज अ वुमेन व्हाट डू यू थिंक कि मजीद इसमें इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? I think the strongest man is the one who can celebrate the success of a woman. तो मेरा एक लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मतलब don't take it otherwise, men who are not happy with their own success, they cannot tolerate a woman being successful. Exactly. So I think it's a question where I would expect you know कि आपको definitely जो atrocities women पे हो रही है, जी. they are really very bad and objectionable. जी. But मैंने ये experience किया है, especially from the lower strata, जी. women are subjected to these kinds of, I think, injustice. जी. And जो उनको family में भी domestic violence हम cases हम देखते हैं, वहाँ मुझे लगता है कि एक important role poverty भी play करती है. जी. Because when men are also helpless, जी. when they are going through different challenges, Indeed. उनको लगता है कि उनका जो भी frustration है and all, they can't take it, dare to take it outside. Yes. So again मुझे लगता है कि इसके लिए आप अफ्रीकन women का अगर आप लाइफ देखेंगे, तो वहाँ पर जो एलिस वॉकर थी, उन्होंने एक टर्म किया था कॉइन कि like women face double atrocity. जी. One because of the society and especially black women, even because they belong to black category, and then men also treat in a bad manner. हाँ. संध्या जी, मेरे ख्याल से इस सेशन का अभी आखिरी सवाल होगा. To all the beautiful ladies out there, कई ऐसी छोटी लड़कियां जो आपको इस वक्त देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस खास दिन पर उनके लिए, जो उनके लिए एक मैसेज होगी? Okay. I would definitely say celebrate your life being born as a woman, Okay. as a girl, because that's the best gift that could have been given to you. And आप as a girl child in a family, आप अच्छा अगर मतलब ध्यान दोगे, पढ़ोगे, लिखोगे एंड सही रास्ते पे जाओगे, तो आपका पेरेंट साइड, इन लॉ साइड, सोसाइटी, नेशन को आप प्राउड करेंगे, जो men नहीं कर सकते हैं. जी. Because a girl is the representative of both sides, माँ का घर एंड डेफिनेटली इन लॉज. सो आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इवन इफ दोज वुमेन हु वांट टू स्टे बैक एज आई थिंक सिंगल एंड वर्क, उनके लिए भी मुझे यही कहना है कि believe in yourself. There is nothing that is impossible. If you are sincere, if you are dedicated, if you are determined, God will definitely help you to achieve whatever is there in your destiny. थैंक यू. थैंक यू सो मच संध्या जी, यहाँ आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी और मुफीद बातें आज के इस प्रोग्राम में हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन. थैंक्स अ लॉट. Thank you so और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहें. जाते जाते बस इतना कहेंगे कि जो आपके इर्द गिर्द ख़वातीन इस वक्त बैठी हैं, इन्हें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है, इज़्ज़त की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है. तब जाके वो किसी भी फील्ड में जाके लोहा मनवाती हैं और अपने आप को पहचान कर न सिर्फ अपना नाम रोशन करती हैं, बल्कि पूरी कौम का नाम रोशन करती हैं. बस इसी मैसेज के साथ हम आज के इस प्रोग्राम में लेते हैं विदा, इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे आपकी का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ.